जानकारी के साथ जुड़ने के लिए हमारे साथ एंड नाउ व्यूअर्स द सीबीआई व्हिच recently filed a charge sheet against 13 accused in the NEET undergrad 2026 paper leak case. CBI has alleged that the subject experts engaged by the NTA leaked questions through handwritten notes, following which they were circulated via digital messaging platforms. The accused experts included Manisha Sanjay Havaldar for physics, Manisha Gurunath Mandhare for biology, and PV Kulkarni for chemistry. Let's take a look at what the charge sheet has revealed. Alright, firstly, the leak had started from NTA subject experts and it moved to beneficiary candidates from there. This is what we've picked up from the CBI charge sheet. Let's move on to the next plate. Leaked by subject experts through handwritten note, then circulated via digital messaging platform. So the questions were leaked via handwritten notes and then they were circulated online. Chemistry paper allegedly accessed in April 2026 at Siddhivinayak Hospital in Latur, run by accused Manoj Shirure. So you can see how there was an entire network including NT experts, salon business owners and even hospital running people. Digital forensic reports, handwriting, expert opinions, academic assessments confirmed that there was a circulation of these question papers. It's been verified through multiple agencies. Searches were conducted at 92 locations across Delhi, Maharashtra, Rajasthan and Haryana. The multi-state search operation has gone on and NT expert Manisha Sanjay Havaldar remembered the questions, she noted them down and then she passed them on. The NEET question paper was leaked. Physics questions were passed to physics faculty at the Pune coaching center. So all three questions, physics, biology, they were passed through different routes. Certain WhatsApp groups, including one named FIFA World Cup 2026, allegedly were used to connect with the candidates. All right. So these are the details that we have broadly accessed from the charge sheet that has been filed by the CBI. Now, let's move on to this. I am joined in by Javed Hussain for additional details on it. जावेद, चार्जशीट से ये सब जानकारी सामने आ रही है, कैसे डिफरेंट क्वेश्चन पेपर्स डिफरेंट रूट से जा रहे थे, डिफरेंट नेटवर्क से जा रहे थे, एक पूरा वेल एस्टैब्लिश्ड नेटवर्क था, नेक्सस था जहां क्वेश्चंस पास किए जा रहे थे. देखिए, जो सीबीआई ने जो दिल्ली के राउजानी कोर्ट में अपने चार्जशीट को सबमिट किया, उसमें उन्होंने बताया है और उनके चार्जशीट से सीबीआई की जांच का खुलासा हुआ है कि जो पेपर लीक हुआ है नीट यूजी साल 2026 में, उसमें एनटीए यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के अंदर से ही जो है पूरी तरीके से ये जो पेपर लीक का मामला सामने है, क्योंकि जो 3 सब्जेक्ट के जो एक्सपर्ट थे उन्होंने उन पे अलग अलग तरीके से, जैसे बॉटनी जोलॉजी की मनीषा गुरुनाथ मांद्रे, केमिस्ट्री पीवी कुलकर्णी और फिजिक्स की मनीषा जय हवलदार, इन लोगों ने अलग अलग तरीके से जो इन पे एलिगेशन है कि इन्होंने पेपर को लीक किया, पीडीएफ के जरिए, टेलीग्राम के जरिए और जो है व्हाट्सएप के जरिए जो है इस क्वेश्चन पेपर को जो है उन लोगों तक पहुंचाया गया जो इस नेक्सस से जुड़े हुए थे। और उसके बाद व्हाट्सएप के अलग अलग ग्रुप बने और ग्रुप बनने के बाद ये जो बाकी जो एग्जामिनर्स थे, लड़के जो नीट में बैठने वाले बच्चे थे, उन तक ये जो है पूरे क्वेश्चन पेपर वहां तक पहुंचा। इसमें जो पीवी कुलकर्णी, उन्होंने करीब जो है हैंडराइटिंग में जो क्वेश्चन पेपर को उन्होंने लिखा और क्वेश्चन पेपर लिखने के बाद उसको बाहर फोटोकॉपी कराने के बाद उसकी एक पूरी जो फाइल है पीडीएफ बनाकर वो बाकी जो इस नेक्सस से जुड़े हुए थे, जो बिचौलिए थे, मिडिलमैन थे, उन तक पहुंचा। सीबीआई ने अपने इन्वेस्टिगेशन में और अपने चार्जशीट में ये खुलासा किया है कि ये जो मेन एग्जामिनर्स थे, ये जब एनटीए में पहुंचे थे तो इनके पास किसी तरीके का कोई भी चेकिंग या कंट्रोल रूम ऐसा नहीं था जो 24 आवर्स इस पूरे सिस्टम को जो है मॉनिटर कर सके, और 20 से 25 दिन का जो बैकअप है वो भी इनके पास से ज्यादा नहीं था। और दूसरी बात, जो इस प्री स्क्रीनिंग होता है
जो एक तरीके से पूरी चेकिंग होती है, बॉडी चेकिंग होती है किसी भी ऐसे सेंसिटिव जो कि देश के सबसे बड़े एग्जामिनेशन में से एक जो एग्जामिनेशन को कंडक्ट करा रही है एनटीए, वहां पर ऐसी कोई भी फैसिलिटी नहीं थी। फॉरेंसिक बेस पर और एविडेंस जो है, डिजिटल एविडेंस भी जो है इस चार्जशीट में जो है सबमिट किया गया है, जिसमें बताया गया है कि मोबाइल चैट रिकॉर्ड, कॉल डिटेल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट्स की जो है इस तरीके से जो है ये भी जो है वहाँ पे पेपर लीक का एक बेस था। फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन को जो और एक्सेस कंट्रोल ऐप के डाटा पर भी इसको पूरा बेस एस्टैब्लिश किया गया है। और दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो एक्सपर्ट हैं उन्होंने भी फॉरेंसिक के तौर पर ये माना है कि जो पेपर लीक हुआ है वो मास्टर सेट के सवाल जो है वो बिल्कुल जो क्वेश्चन पेपर था नीट के वो बिल्कुल उससे मेल खाते हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें से शुरुआत में ही जो स्टेट पुलिस जब इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेट कर रही थी तो उन्होंने भी बताया था कि जो क्वेश्चंस की पेपर है, जो नीट पेपर्स के लिए जो तैयारी करते हैं उसमें पूरा पेपर जो है करीब 120-125 पेपर जो है क्वेश्चन वो इसमें मैच कर रहा था। जावेद, तो फिलहाल जानकारी के साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। व्यूअर्स, वी नाउ मूव ऑन। नाउ परम प्रज्ञा